Good morning, students. So, in a previous lecture, we have studied the limitations of. In a previous lecture, we have studied the limitations of octet rule. Now, we will study small topics of this chapter. And that the first one is lattice enthalpy. Lattice enthalpy. Enthalpy means energy, and now we will study lattice enthalpy. Definition is very clear. It is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions. Again, definition is very clear. It is defined as the energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent. That means we have to convert solid compound into gaseous constituent. For example, if we take the example of sodium chloride is a ionic compound in which sodium possesses +1 charge and chlorine possesses -1 charge, and it is a solid compound. So solid into gaseous form, and उसके constituent हो जाएंगे Na+1 gaseous form में and Cl-1 गैसियस फॉर्म में. तो हमें ये कन्वर्ट करना है. सो 788 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो 788 किलो जूल एनर्जी क्या हो गई? लैटिस एंथैल्पी हो गई NaCl की. सो लैटिस एंथैल्पी of NaCl is 788 kilojoule per mole. That means 1 mole of NaCl requires 788 kilojoule energy to separate solid ionic compound into its gaseous constituent, that means Na plus and Cl minus. तो Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? 788 किलो जूल एनर्जी चाहिए. बराबर. सो स्मॉल टॉपिक था लैटिस एंथैल्पी. डेफिनेशन में SQ के अंदर डेफिनेशन में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन. सेम वे बॉन्ड लेंथ भी SQ के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. बॉन्ड लेंथ डेफिनेशन देखते हैं. बॉन्ड लेंथ is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in the molecule. Again, bond length is defined as the equilibrium distance between between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. For example, we will take Cl2 molecule. In that chlorine atoms are attached with covalent bond, single covalent bond. तो अगर दिखाना है तो क्या होगा? चलो, अगर ये हम लोग क्लोरीन एटम ले रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं. ये एक क्लोरीन एटम है, ये दूसरा क्लोरीन एटम है. सो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड लेंथ. तो ये जो डिस्टेंस है वो है 199 पिकोमीटर.
ओके, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ कितना हो गया 199 पिकोमीटर, बराबर। तो चलो हम लोग यहाँ पे अगर ऐसा बोल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, जिसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, एंड टोटल डिस्टेंस है उसको R बोल देते हैं। तो बॉन्ड लेंथ R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। यहाँ पे तो सेम है, तो यहाँ पे हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं कि रेडियस ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा 198 है डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा वो 99 पिकोमीटर। सो बॉन्ड लेंथ क्लियर हो गया होगा क्या है। बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन द मॉलिक्यूल। क्लियर, लेटाइज एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ। Next topic is bond angle. Bond angle. So it is defined as the angle between orbitals containing bonding electron pairs around the central atom. It is defined as the orbitals between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom. फॉर एग्जाम्पल H2O लेते हैं, सो H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन पैर जो शेयरिंग हुआ है, बराबर, वो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन इस तरीके से हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन पैर होंगे। तो ये जो एंगल है 104.5 डिग्री, वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। It is determined by the spectroscopic method. Okay, here also bond length is determined by, it is determined by spectroscopic X-ray diffraction or electron diffraction. Methods. It is determined by spectroscopic method, X-ray diffraction method or electron diffraction method. Same way bond angle is also determined by the spectroscopic method. Bond angle is determined by the spectroscopic method. Okay, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी एक्चुअली हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं। बॉन्ड एंथैल्पी, so it is the amount of energy required, to break 1 mole of bonds of a particular type of atoms in a gaseous state. Bond enthalpy is the amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type of gaseous atoms. ओके, फॉर एग्जाम्पल H2 गैस ले रहे हैं, O2 गैस ले रहे हैं, बिटवीन 2 हाइड्रोजन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड। ओके, तो गैसियस एटम में कन्वर्ट किया। एटमाइजेशन एनर्जी, ए स्टैंड्स फॉर एटमाइजेशन एनर्जी, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर वो डिटेल में पढ़ेंगे। एनर्जी इज 435.8 किलो जूल पर मोल। सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड है, बिटवीन 2 ऑक्सीजन देयर इज अ डबल बॉन्ड। सो ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी है 498 किलो जूल पर एनर्जी। अब कई बार क्या होता है कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यहां पे तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल एटम्स थे। पॉली एटॉमिक दैट मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ अगर एटम्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं H2O का, तो उसके अंदर जितने बॉन्ड होंगे डिफरेंट उसके हिसाब से उसकी एंथैल्पी का एवरेज लिया जाएगा। एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल H2O गैस है, उसको एक बॉन्ड ब्रेक किया यहाँ पे, अगर OH एंड H, चलो एक बॉन्ड ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा, H गैसियस फॉर्म में एंड OH गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है 502 किलो जूल पर मोल।
चलो उसके बाद दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया, तो दूसरा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है 427 किलो जूल पर मोल। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड, तो कितनी हो जाएगी इसके लिए 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बराबर कि जब भी ऐसे ज़्यादा बॉन्ड्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया है तो उसके अंदर इस तरीके से आपको बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना होगा। बराबर, चलो लास्ट वन है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट JEE के लिए के अंदर भी ये टॉपिक बहुत बार पूछा गया है। बॉन्ड ऑर्डर, एक्चुअली यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन दी है लुईस की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, बट आगे हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT थियरी पढ़ेंगे, उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में सही में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वो सीखेंगे। ये गलत नहीं है, ये भी सही है, बट उसके अंदर क्या है कि वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा है। In the Lewis description of the covalent bond, in the Lewis description of a covalent bond, bond order is given by the number of bonds present between the two atoms. It is defined by the number of bonds present between the two atoms. For example, H2 लेते हैं, सो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। O2 लेते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। N2 लेते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3। ओके, नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। तो कुछ एग्जांपल ऐसे भी है, ये सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कोवेलेंट बॉन्ड होता है एंड मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है तो ही ये सही साबित होता है। कई बार आयोनिक के लिए ये सही साबित नहीं है, आयोनिक कंपाउंड कोई लेते हैं उसके लिए ये सही नहीं है। बराबर, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग O2-2 ले रहे हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है, कैसे दिखाओगे उसको। ओके, तो ये जो चीज़ है वो हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT थियरी पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर देखेंगे क्या है। बट डेफिनेशन में ये सारे क्वेश्चन लैटिस एंथैल्पी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर 1 मार्क्स के SQ के अंदर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में होता है 50 मार्क्स थियरी एग्ज़ाम में SQ के अंदर पूछ सकते हैं। बराबर, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजोनेंस एंड पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स देखेंगे।